Now you need to understand that this type of bonding is very different than the usual covalent bonding. When you used to study the normal covalent bonding, वहां आप इस तरीके से assume करते थे कि for example if you have a substance A and you have another substance B, अगर आपके पास ये दो atoms हैं A and B, then they are going to form a bond like this जहाँ पे there will be equal contribution from both electrons, one from A and one from B. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास इक्वल कंट्रीब्यूशन होती थी फ्रॉम बोथ ए एंड बी. और आई कैन राइट इट लाइक दिस, that electron pairs were equally shared by both A and B. However, in the case of coordinate covalent bonding, the story is going to be completely different. So now I'm going to write coordinate covalent bonding. Before we jump on to its definition, that what it exactly is, let us talk about a basic concept that how this is going to occur. We already have done multiple examples in yesterday's class that was related to the idea of electron expanded systems and electron deficient systems. So we studied there that there are certain systems जिसके अंदर octet से कम electrons हैं, और फिर कई ऐसे systems हैं where you are going to have like greater than 8 electrons. तो दो तरह के systems थे. अब coordinate covalent bonding किस तरीके से work करती है कि यहाँ पे we have two different types of atoms. When one we have electron donor system, and secondly we have another system which is known as electron acceptor system. So basically our key idea is that this electron donor system is rich in electrons. इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, रिच हैं. एंड दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम इज एक्चुअली deficient in electrons. So what actually happens is that this electron donor system will donate its electron pair entirely to this electron acceptor system. पहले क्या था? Let us suppose if you talk about this covalent bonding, one electron was coming from A, the other electron was coming from B. दोनों electrons एक एक, वो एक अपना लाता था, एक ये लाता था, बॉन्ड बन जाता था. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या है कि एक सेंटर के पास कुछ भी नहीं है, दूसरा सेंटर ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है. तो अगर मैं कह रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इट मींस इसके पास जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. सो इट कैन गिव इट्स इंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को इजीली दे सकता है ताकि उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर, जिससे आपको काफी क्लैरिटी होगी कि हमने इसको किस तरीके से करना है. सो लेट अस स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहती हूँ कि हमारे पास इसकी सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है. लेट अस सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ NH3 and H positive ion to form NH4 positive ion. हम कहते हैं कि this is an example of a coordinate covalent bonding. Now let us try to understand this. Suppose I take into consideration this ammonia. So you see ये नाइट्रोजन है, ठीक है. This nitrogen is surrounded by three hydrogens. एक मेरे पास ये है, then this is another hydrogen, and then this is another hydrogen. So if I get to complete the electrons, they are going to be completed like this: one dot and one cross, one dot and one cross, one dot and one cross. And then we further know that nitrogen has one lone pair of electrons. This lone pair of electron is actually in excess, right? It is not forming any bond with anything. So this is present like, a free pair of electrons, and it can be given to
any deficient species. So these electrons are basically of our major interest. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी निशानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम की होती है वो होती ये है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव नॉट बॉन्डेड विद एनी अदर एटम, एनी अदर स्पीशी, एंड दे आर अवेलेबल फॉर डोनेशन वेरी इजीली. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं अगर इसका रिएक्शन करवाऊं, आई टॉक अबाउट एच पॉजिटिव आयन. सो इफ यू सी हाइड्रोजन इज लाइक दिस. हाइड्रोजन का मतलब है कि अगर मैं कहूँ व्हाट इज दिस, यू विल से इट हैज वन प्रोटॉन, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन. But if I say you have H positive ion, now H positive means that it has one proton but it has zero electrons. पॉजिटिव आइन किसको शो करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, दैट दिस इज एच पॉजिटिव. नाउ दिस इज एंटायरली एम्प्टी. ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी नहीं है. जो इसका एक था वो भी नहीं है इसके अंदर. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन डू द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग. नाउ द coordinate covalent bonding will occur like this, that this pair of electron will entirely be donated to this H positive ion. तो जब ये होगा you will get to see कि आपकी डायग्राम किस तरीके से लगेगी. Suppose I can draw the diagram for you guys like this. अब देखो ये है ना, अब इसके साथ जो H पॉजिटिव ने बाइंडिंग करनी है, दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ये आपके पास जो बना, दिस इज नोन एज NH4 पॉजिटिव आइन. हम कहते हैं कि ये इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर ये हुआ है कि ये पूरे के पूरे टू इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए. सो बेसिकली आई कैन राइट इट्स इक्वेशन लाइक दिस, कि अगर मेरे पास ये है, दिस इज एमोनिया, it has three hydrogens, and then it has this one lone pair of electron, and if it is reacting with this H positive ion, then this lone pair of electron is entirely given to this hydrogen. The arrow is always directed from electron donor species to electron एक्सेप्टर स्पीशी. तो देखो H पॉजिटिव आइंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर एरो का जो फेस है वो उधर डाल दिया है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज दिस. ये देखो, ये आपके पास इस तरीके से हो गया. सो दिस एक्चुअली इज नाउ द एंटायर डायग्राम. आप बोलोगे कि दिस इज द डायग्राम. नाउ स्टूडेंट्स ऑफन वंडर कि मैम NH4 के ऊपर पॉजिटिव क्यों लिखा है. ये NH4 के ऊपर पॉजिटिव इस चीज को शो करता है कि जो नाइट्रोजन है ना, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए हैं. मैम एमोनिया को बनाने का क्या बेनिफिट होगा? हमेशा याद रखना कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम शेप्स में पढ़ेंगे, कि जहां पे भी बॉन्ड पेयर्स होते हैं ना, आप ऐसे समझ लो, मैं आपको इसका सिंपल आंसर ऐसे दे सकती हूँ कि हमारे पास बॉन्ड पेयर्स होते हैं और हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं. जो लोन पेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है. सो मोर रिपल्शन मीन्स दैट अ सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल. So every system wants to get stabilized, and stability is possible when you are making bonds. Bonds बनाओगे तो आपकी repulsion कम होगी, repulsion कम होगी तो system stable होगा. So you basically need to keep this concept in your mind. Isha, is this point clear? I hope that makes a little sense to you. ठीक है. यस, सो NH3, यस, दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसके जरिए NH3 बिल्कुल स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है. बिल्कुल दोनों का फायदा, इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट थिंग, राइट. तो देखो ये आपके पास NH4 पॉजिटिव बन गया. तो पहली इसी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग को ना डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं. सो यू कैन से कि डेटिव बॉन्डिंग की जो सबसे पहली एग्जांपल है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस एमोनियम आइन. ठीक है, वो ये एमोनियम आइन इसकी एग्जांपल है. ये हम लोगों ने कर ली, एमोनियम आयन. अब वो इसी एमोनियम आयन की एग्जाम्पल को जो है मैम पॉजिटिव पे प्लस
ओके, पॉजिटिव इसलिए है जो शो कर रहा है कि नाइट्रोजन के इस टाइम पे एक तरह से 4 बॉन्ड्स बन गए हैं, जबकि नाइट्रोजन को सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन इस चीज को भी शो कर सकता है। और पॉजिटिव साइन इस चीज को भी शो कर सकता है कि ये लोन पेयर इसने इंटायरली हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। तो यू कैन टेक टू मीनिंग्स आउट ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। इज इट क्लियर ईशा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वी हैव अदर एग्जांपल्स। अब इसी की ना एक एक्सटेंडेड एग्जांपल है जो इस बार हमारे पास मई जून 2023 के पेपर में प्रॉबेबली आई थी। अब उसने इसमें क्या कहा था, उसने कहा था NH3 और HCl का रिएक्शन करवा दो। अब जब आप ये रिएक्शन करवाते हो ना, यू गेट NH4Cl। Now the formation of NH4Cl is an example of dative bonding। तो उसने इसके ऊपर पूरा एक पास पेपर्स में क्वेश्चन दिया था। यस, दिस केम इन मई जून 2024, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे ये क्वेश्चन आया है। और हम अब पूरे उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ये दिया था कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द ionic, covalent and coordinate bonding present in a formula unit of NH4Cl। So this was the question. Now let us see कि इसको कैसे करना है। So again, let us suppose if I take this example, देखो now this is very easy for us to understand। ये मैं कहती हूँ जी मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसके साइड पे 3 हाइड्रोजन हैं इस तरीके से। नाउ वी नो दैट दिस इज गोइंग टू हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। Then I take another example, I'm going to add HCl to it। अब देखो यहाँ पे HCl क्या है, this is HCl like this। अब HCl के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, यहाँ पे सेंटर में है, इसमें कोई सीन नहीं है, किडना डेफिशिएंट सिस्टम का सीन है, कुछ भी नहीं है। So when they combine, NH4Cl is formed। अब NH4Cl कैसे बनता है कि you can assume कि यहाँ पे HCl जो है ना, इस HCl के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ प्रेजेंट नहीं है। ऐसा क्यों है, हम कहते हैं कि ये जो यहाँ पे सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड है यहाँ पे। और रीजन क्या लिखते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मोर inclined towards chlorine। और रीजन क्या देते हैं, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट विल नॉट स्टे एट द सेंटर, रादर इट विल बी शिफ्टेड टू अ साइड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो आउट ऑफ दिस HCl, दिस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस Cl की तरफ चले जाएंगे। जब दोनों यहाँ पे जाएंगे, हाइड्रोजन विल बिकम डेफिशिएंट, राइट। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स डेफिशिएंसी, ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ना निकल भी सकता है एज अ Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यू कैन इवन सपोज इट लाइक दिस कि दिस बॉन्ड विल ब्रेक। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यू कैन एज्यूम कि यहाँ पे पीछे क्या रह गया, H पॉजिटिव रह गया। ये पीछे कैसे रह गया, दिस इज एग्जिस्टिंग एज अ क्लोराइड नेगेटिव आयन, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले गया ना। So now this lone pair will actually be donating both of its electrons to this H positive ion। तो जो आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, this is going to look like this। ये देखें, ये यहाँ पे you have this lone pair of electron। Arrow is always directed from electron donor center to electron acceptor center। So this is your acceptor center, hydrogen is accepting। Again आप इसको क्या लिखोगे, you will write it as NH4 पॉजिटिव। और साथ में क्लोरीन 2 लेके निकला, तो हम लिखेंगे दिस इज क्लोरीन नेगेटिव। तो ओवरऑल हम इसको कैसे लिखते हैं, ओवरऑल हम इसको NH4Cl की तरह लिखते हैं। अब जरा फोकस करो कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, मैम समझ नहीं आया, ओके ठीक है।
देखो मैंने सिंपल इसमें ये बात बताई कि आपके पास एमोनिया है, एमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इस हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास क्यों जाएंगे? बिकॉज ये जो HCl का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सारी अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा। अगर ड्रैग कर लेगा तो हाइड्रोजन विल बिकम डेफिशिएंट। डेफिशिएंट होगा तो उस पे पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ इट नीड इलेक्ट्रॉन्स, so these two electrons from the lone pair of nitrogen will be donated to this H positive ion. So you can see the diagram, this lone pair of electron is actually being donated to this hydrogen. So again you are going to get the similar thing with a positive charge। और साथ में मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया। इस Cl नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि नाउ इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो कहाँ से आए? ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो लेके निकल गया था। सो व्हेन यू कंबाइन दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव आइन, you collectively get this NH4Cl। is that clear to both of you? ठीक है। Ma'am, if the electron pair is attracted towards hydrogen, then why does hydrogen have a positive charge? Ma'am, dative bonding को positive lone pairs से शो करते हैं। पॉजिटिव लोन पेयर्स तो कभी भी नहीं होते। लोन पेयर्स तो आपके पास ये होते हैं। पॉजिटिव शो कर रहा है यहाँ पे कि ये जो आयन बना है नाइट्रोजन के, इस टाइम 4 बॉन्ड्स हो गए हैं जबकि नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए। तो पॉजिटिव शो कर रहा है कि नाइट्रोजन एक लूज कर दे, या पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे दिए हैं और इसलिए उस पे पॉजिटिव है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है जो आप लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नहीं, वो मैं ये बता रही हूँ कि वो डेफिशिएंट था तो इसलिए हाइड्रोजन डेफिशिएंट था इसलिए नाइट्रोजन ने उसको दिए। इट रियली रियली नेवर मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई? तो आपने दो कॉन्सेप्ट जहन में रखने हैं। एक आपने जहन में रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन चार्जेस की समझ नहीं आई। चार्जेस को देखो सिंपल, पहले बेसिक एग्जांपल को देखो, चार्जेस की समझ आएगी। उसके अंदर कितना सिंपल है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर्स थे इस एग्जांपल में, ये देखो यहाँ एच पॉजिटिव है। एच पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि ये इंटायरली डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको जरूरत है इसलिए इस पे पॉजिटिव है। ये लोन पेयर अपना इंटायरली उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। अब देखो जब इसने यहाँ पे दिए तो यहाँ ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को जो बनाने में लग रहे हैं वो नाइट्रोजन से आ रहे हैं। एरो डोनर से एक सेपरेट स्पीशी की तरफ गया। ठीक है। यस, अगर अगर एच पॉजिटिव ना होता तब भी NH3 से बॉन्ड बना लेता, बिल्कुल जैसे इस एग्जांपल में हुआ है, बिल्कुल बन सकता। और अगर इसको करना होता, यस, फिर उसकी रीजन यही बताई ना, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करके ले जाएगी। क्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, हाइड्रोजन डेफिशिएंट रह जाएगा, इसलिए बॉन्ड बन रहा है। हुसैन समझ आई? यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने ज्यादा आपके पास किसी चीज पे लोन पेयर्स हों वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। अभी इसकी एक दो एग्जांपल्स, अभी हमने इसकी काफी एग्जांपल्स करनी है, चलती जाएंगी तो और क्लैरिटी आपको आएगी। सिर्फ अभी समरी याद रखो। समरी क्या क्या है? She is asking about how to make a diagram of dative bonding with arrowhead by as well as by showing lone pairs। हाँ तो आप ये वाली कर दो। देखो अगर वो आपको कहता डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ, मैं नीचे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बनाने लगी हूँ, तो आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी एरो के साथ आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। आपकी डायग्राम के अंदर लोन पेयर्स भी होने चाहिए, आपकी डायग्राम के अंदर एरो हेड भी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए।
अब देखो अगर वो मुझे यहाँ पे पूछे कि ये जो NH4Cl बना इसमें कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, अब देखना मैं क्या बता सकती हूँ। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसके अंदर देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर मैं बता सकती हूँ इसके अंदर एक डेटिव बॉन्ड भी है। डेटिव बॉन्ड कहाँ पे है? एट दिस पॉइंट, ये वाला, जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन को दे रहे हैं। ठीक है। तो एक हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि देयर इज वन डेटिव बॉन्ड, जिसको हम वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह रहे हैं। और लास्टली हम इसके अंदर कहेंगे कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। आयोनिक बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है? हम कहेंगे NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड भी सेटअप होगा। तो उसने आपको पेपर में कहा कि लेबल करके डायग्राम पे बताओ कहाँ कहाँ कौन कौन सा बॉन्ड है। तो देखो मैं कैसे बता सकती हूँ, इसको हाईलाइट करके लिख सकती हूँ, दिस इज अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस वाले को हाईलाइट करके लिख सकती हूँ, इट्स अ डेटिव बॉन्ड या इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान, इसको लिख सकती हूँ दिस इज एन आयोनिक बॉन्ड। सो यू हैव टू डू योर वर्किंग लाइक दिस। अब बात समझ आई इसकी? तो आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स को ड्रॉ करना है। और फिर यहाँ तक मुझे बताएं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ दिस इज क्लियर अप टिल दिस पॉइंट लेट मी नो, फिर मैं आगे चलती हूँ। अब देखो अगर इसी की, ओके, इसी अगर इसी की डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती, डॉट एंड क्रॉस, तो मैं बिल्कुल ऐसे कर सकती थी ना। मैं आपको क्विकली वो भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपके पास है नाइट्रोजन। ठीक है। ये आपके पास है एक हाइड्रोजन। ये देखो, ये आपके पास है सेकेंड हाइड्रोजन। ये आपके पास है थर्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बाकी देखो सबके पास डॉट क्रॉस है, डॉट क्रॉस है, डॉट क्रॉस है। फिर आपने इसके अंदर रिएक्शन किसका करवा रहे हो? HCl का। ये देखो दिस इज 1H एंड देन यू हैव दिस Cl। अब इसके दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1.1 क्रॉस, बिकॉज बॉन्ड इज लाइक दिस। ठीक है। तो Cl के ऊपर कितने लोन पेयर्स होते हैं? 3। वो 3 लोन पेयर्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद आफ्टर बॉन्डिंग क्या होगा? दिस एंटायर पेयर विल बी डोनेटेड टू दिस हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन विल लीव। तो देखो द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये आपके पास नाइट्रोजन है। ये देखें, ये आपके पास एक हाइड्रोजन हो गई। ये आपके पास यहाँ पे सेकेंड, देन यू हैव अगेन लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ से ये फोर्थ हाइड्रोजन आ गई HCl वाली। इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं, दिस वन, नाइट्रोजन के। यहाँ पे क्या था? डॉट क्रॉस था, डॉट क्रॉस था, डॉट क्रॉस था। ठीक है। ये इस पूरी चीज के ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, दिस इज NH4 पॉजिटिव। और साथ में क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, यानी कि कौन से वाले? दिस वन। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे दिस इज द इंटायर डायग्राम ऑफ NH4Cl। तो आपने इस तरीके से, अगर डॉट एंड क्रॉस कहता आपने ऐसे कर देनी थी। अगर वो आपको कहता, जैसे उसने यहाँ क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो। अब डायग्राम टू शो का मतलब है कि कैंडिडेट कैन शो any one of the diagrams. Either you can show this or you can show this dot and cross diagram. Both are going to be perfectly fine. This is totally up to you कि आप किसको शो करते हो। ठीक है। अब आपके पास एक एग्जांपल ये हो गई, और ये आपके रिसेंट मई जून 2024 के पेपर 23 वेरिएंट के अंदर आई भी है। आपने इसको इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग ना इसको प्रैक्टिस करने की खुद कोशिश करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अब इसको बड़े ध्यान से करना। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट अस सपोज आपके पास है H2O, और अब आप इसको रिएक्ट कर रहे हो H पॉजिटिव के साथ एंड यू वांट टू मेक H3O पॉजिटिव आइन। अब देखो पानी है ना, पानी इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 1.1 क्रॉस, 1.1 क्रॉस। क्विकली टेल मी हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। डिफरेंटली शो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आयोनिक कैसे करेंगे?
टू। यहाँ पे देखो मैंने ये टू लोन पेयर्स ड्रॉ कर दिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद मुझे क्या शो करना है? एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव पूरा का पूरा खाली है, डेफिशिएंट है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मुझे जल्दी से आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी इस केस में कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरा कंपाउंड क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज वाटर। और उसके अंदर भी लिखेंगे द लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, पूरी बात लिखनी है। लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर रही। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, ठीक है। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी कौन है, अब आप लोग क्या बताएंगे? यस, एच पॉजिटिव आइन इज योर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी, वेरी गुड। अब देखो, अब मैंने हाइड्रोजन आइन, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताना कि अगर मैंने एरो को शो करना है, मैं एरो को कहाँ से कहाँ पे शो करूँ? जल्दी जल्दी बताएं। Yes, donor pair to acceptor pair, शाबाश। So this time the direction of my arrows will be like this. अब देखो, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, तो सिर्फ एक लोन पेयर जाएगा हाइड्रोजन की जरूरत पूरी करने को, बिकॉज हाइड्रोजन ओनली नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स, उसको चार की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ दो की है। सो द डायग्राम इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये देखो, दिस इज द वाटर इन फ्रंट ऑफ यू। इस वाटर के ऊपर देखो कितने लोन पेयर्स हैं, ये टू लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज द एच पॉजिटिव आइन, ये पड़ा है। सो दिस टाइम again I will be drawing a positive sign, and now you can see the direction of arrows, it is directed from donor to acceptor species। तो मैं कहूंगी this actually is the H3O positive ion, इसको बोलते हैं this is the hydronium ion। ठीक है। अब मैं आप लोगों का एक ओ लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जब मैं आप लोगों को ओ लेवल्स में या कोई भी आपका टीचर पूछता था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसिड, तो हम कहते थे एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट देयर प्रोटॉन्स। और उस टाइम हमारे जहन में ये प्रोटॉन समझ आता था कि ये एच पॉजिटिव है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोटॉन एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ये H3O पॉजिटिव आइन होता है, ये अकेला नहीं होता। बिकॉज ये H पॉजिटिव आइन तो इतना स्टेबल है, ये कभी भी एसिडिटी कॉज नहीं करता। जब भी एसिड्स की एसिडिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं इट इज ऑलवेज ड्यू टू हाइड्रोनियम आइंस। ठीक है। तो पानी के अंदर, इसीलिए तो हम एसिड्स के नीचे स्टेट सिंबल्स क्या लिखा करते थे? हम एसिड्स के नीचे हमेशा ये लिखते थे एक्वस। तो वो एक्वस का मतलब क्या होता था कि एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस, एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, द H positive part gains lone pair of electrons from oxygen and forms hydronium ion. This hydronium ion is actually responsible for the acidic behavior of acids. This is the stable form। ये H positive की एग्जिस्टेंस कहीं से भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस बेचारे के पास तो एक प्रोटॉन है, उसने क्या ही कर लेना है, ठीक है। तो हमेशा एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये हाइड्रोनियम आइन है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। अब मैं यहाँ से ही आपको इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल पे ले जा रही हूँ। बच्चों, व्हाट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोनियम आइन, तो आपका आंसर क्या होगा? सोच के बताइएगा। अगर मैं कहूँ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? टू। कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये देखें। फोर नहीं है बेटा, एक ये बॉन्ड है, एक ये है। ये मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स वो हैं जिसमें इक्वल शेयरिंग हुई है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लाया, एक ऑक्सीजन लाया। इसी तरह यहाँ पे दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोनियम आयन के केस में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? वी हैव टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। और अगर मैं पूछूं डेटिव बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे? यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? यस, डेटिव इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, देखो यही तो डिफरेंस बताया।
नॉर्मल कोवेलेंट में क्या होता है, अगर ये है ना CH, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाएगा एक कार्बन लाएगा, दोनों एक एक लाए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में क्या है, अगर ये है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज कार्बन ही ला रहा है हाइड्रोजन नहीं कर रहा, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन स्पीशी। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे डेटिव बॉन्ड बन रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, दिस वन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वी हैव वन डेटिव बॉन्ड। अहमद, इज दिस क्लियर? क्योंकि उसने आपको एमसीक्यूज में ऐसी बहुत चीजें पूछनी है, स्ट्रक्चर्स देके कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे आप लोग तो आपको आगे फायदा होगा। अब मैं आपको ना यहाँ पे इसी की एग्जांपल एक होमवर्क में अटैच करने लगी हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह जैसे मैंने अमोनिया की करवाई। इस बार मैंने वाटर के अंदर HCl डिसॉल्व किया, एंड इट इज फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और मैंने आपको कहा कि अब आपने इसके अंदर शो करना है इसमें कितने कोवेलेंट हैं, इसमें कितने डेटिव हैं, कितने आयोनिक हैं, पूरी डायग्राम के साथ आपने शो करना है। नाउ टेल मी, कैन यू गाइस डू दिस एग्जांपल इजीली? This is exactly similar to the example of ammonia and HCl that we did previously. The only difference is कि यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन पे, वहां एमोनिया में एक लोन पेयर था, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये हो गई, ठीक है। ये आपके पास, मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ, दिस इज योर होमवर्क एग्जाम्पल, right? So moving on to the next example, I am making sure to cover all the examples that we have seen in the past papers. Another example, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ हमारे पास BF3 है, और उसका रिएक्शन उसने कहा है NH3 के साथ करवाओ। सो द थिंग इज व्हेन द टू ऑफ देम रिएक्ट, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है NH3BF3। इसको बोलते क्या है, इसका नेम बहुत सिंपल है। NH3 को बोलते हैं एमोनिया, B को बोलते हैं बोरॉन, and we have three fluorines, so it's trifluoride. So this example is known as the formation of ammonium boron trifluoride, और हम कहते हैं this again is an example of coordinate covalent bonding. अब देखो, अब इसको हम सब ना मिलके खुद ड्रॉ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम कॉन्सेप्ट ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कहती हूँ जी आपके पास BF3 है। अब देखो, दिस इज बोरॉन, you take it out like this, then you have one fluorine, एक fluorine आ गया, then you have another fluorine, and then you have another fluorine, right? So BF3 is actually like this. And now we know that boron has a total of 3 electrons in its valence shell because it belongs to group number 3, right? And fluorine has a total of 7 electrons in its outermost shell because it belongs to group 7. अब देखो, बिफोर इवन जंपिंग ऑन टू द डायग्राम, मुझे बताइएगा कि हर फ्लोरीन पे बच्चों मैं कितने लोन पेयर्स ड्रॉ करूं। हर फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर्स ड्रॉ करने हैं? 3, शाबाश। 3 लोन पेयर्स, यानी टोटल 6 और 3 पेयर्स, ये देखो, ये 3 लोन पेयर्स आ गए, शाबाश। इसी तरीके से ये 3 लोन पेयर्स इस पे आ गए, और ये 3 लोन पेयर्स हमारे पास इस पे आ गए। दोबारा से याद रख लें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी फैमिली में इसके पास 0 लोन पेयर्स होते हैं, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3, और इनके सारे ग्रुप में यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये देखें, BF3 है। अब BF3 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखो, एक डॉट है, एक क्रॉस है, एक डॉट है, एक क्रॉस है, एक डॉट है, एक क्रॉस है, यानी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। सो यू कैन बेसिकली सी के बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में तीन तीन
सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उसने तीनों डोनेट कर दिए एक एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। कैन यू ऑल टेल मी दैट इज द ऑक्टेट ऑफ BF3 कंप्लीट? नो। इफ इट इज नॉट कंप्लीट तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इस सिस्टम का क्या नेम होगा? इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन किस टाइप का सिस्टम? एक्सेप्ट करेगा, शाबाश। तो हम इसके दो नेम्स लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम and it is going to accept the electrons। अब देखो इसके कंपैरिजन में वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद ammonia NH3। so you can take the example of NH3 like this is your nitrogen followed by, you can see, one hydrogen, then again you have this other hydrogen, and then again you have this hydrogen. So in every case you can see this is one dot and one cross, one dot and one cross, one dot and one cross, right? So here you can see कि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स भी पड़े हैं because नाइट्रोजन is going to have one lone pair in each case। So now tell me कि इसके पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? It is going to be, yes, it's going to donate its electrons. So I can write it down that it is going to be an electron donor species because it has a rich lone pair of electrons that is available for the bonding। So अब मुझे बताइएगा बच्चों कि एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, किस एलिमेंट से किस एलिमेंट की तरफ जाएगा? आप मुझे उस तरह से आंसर करें। हम्म। फ्रॉम नाइट्रोजन टू ब्रोमीन या एमोनिया टू BF3, वेरी गुड, शाबाश। तो ये देखो यहाँ से एरो इज टू गो फ्रॉम दिस टू दिस साइड। तो अगर मैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ इट आउट लाइक दिस इज BF3। अब मैं इसका डॉट एंड क्रॉस नहीं ड्रॉ करी, मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। सो यू कैन सी दिस इज नाइट्रोजन एंड दीज आर द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। माय डियर किड्स, बट इफ आई आस्क यू to let me know how many total covalent bonds are present in this, then what is going to be the answer? Yes, it's going to have a total of 6 covalent bonds. One, two, three, four, five, and six. So my answer is going to be six. And how many coordinate covalent bonds? Yes, one dative bonding, one coordinate covalent, shabash. So this is the example of NH3BF3. You can easily draw its diagram, dot and cross diagram. You can easily draw its इस तरीके से arrow वाली diagram. So it's going to be easy in a similar way. हमारे पास ये हो गया। Let us talk about another famous example from the past papers, and that is known as the example of AlCl3 plus AlCl3। So you see, you have two aluminiums and you have six chlorines, तो ये बन गया Al2Cl6 डाइअल्यूमिनियम हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो है ना, दिस एग्जिस्ट एज अ डाइमर। डाइमर बोलते हैं, डाइमर इज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, राइट? देखो बच्चे, AlCl3 को ड्रॉ करते हैं। दिस इज AlCl3, and now I want to complete its electrons। So you can see यहाँ पे one dot one cross, one dot one cross, one dot one cross। एल्यूमिनियम के outermost shell में 13 electrons होते हैं। Configuration is 2, 8 and 3। So this shows that the outermost shell has a total of 3 electrons, right? So similarly, you have chlorine, and you know that chlorine has a configuration of 2, 8 and 7, which shows that it has a total of
7 electrons in its outermost shell. So हर हर केस में एक एक क्लोरीन ने तो बॉन्ड बना दिया. So please tell me how many lone pairs are going to exist on every chlorine? 3. तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, right? So now what I'm going to do is कि अब मैं यहाँ पे इसको करने के लिए इसके साथ AlCl3 को ही रिएक्ट करवाना है. कैन यू ऑल टेल मी कि AlCl3 जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है? इसमें एल्यूमिनियम का देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. आपको इसकी क्या समझ आ रही है? व्हाट डज योर अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट कि ये कैसा सिस्टम है? Yes, it's an example of a electron deficient system. तो दिस टाइम AlCl3 के साथ एक और डेफिशिएंट सिस्टम ही मिलेगा और एक दूसरे की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे. लेट अस सी हाउ. यहाँ पे आपने इसको जब भी ड्रॉ करना है ना, वो आपको कहता है Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें. तो बच्चे ये जो एंड वाली क्लोरीन होती है ना, इसके सामने आपने दूसरा Al ड्रॉ करना है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस की पॉइंट. अब देखना कैसे. मैंने इसके सामने यहाँ Al ड्रॉ किया और जो आपके पास यहाँ पे ये वाला Al होगा इसके सामने इसका पहला Cl लगाना है. ठीक है, ये देखो, एक Cl, एक Cl और ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. अब इसके ऊपर भी सेम वही पैटर्न करेंगे. डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस. एवरी क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स. इसी तरीके से every chlorine has 3 lone pairs. Now what exactly is going to happen is this, that this lone pair is going to donate its electron density towards this aluminium, right? And similarly, this chlorine is going to donate its electron density towards this aluminium. So as a result, they will form a bridge structure which is known as Al2Cl6. तो वो Al2Cl6 जो होगा वो बेसिकली यही होगा. तो जो मैंने ये फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, this actually is Al2Cl6. Now students often wonder कि मैम अगर एल्यूमिनियम ने Cl से ही लेना था तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सका कि इन सारे सीएल्स ने और इन सीएल्स ने इस एल्यूमिनियम को दे देते, rather than having another molecule और फिर जो है वो उससे ले रहा है. why is it happening? So the point is कि अगर वो अपने क्लोरीन से एल्यूमिनियम ट्रांसफर करता तो उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप खराब हो जाती, उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती. सो इट ट्राइज टू रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3. तो उसके जो electron pairs हैं, they are donated to this aluminium and this lone pair is donated to. नहीं, हम 4Cl नहीं लगा सकते. 4Cl क्यों लगा लेते? AlCl3 का कंपाउंड ही इस तरीके से बनता है. AlCl4 नेगेटिव आयन के तौर पे स्टेबल एग्जिस्ट करता है. AlCl4 एज अ सोल्यूशन में एक अच्छे कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, कर भी ले तो उसकी एग्जिस्टेंस इतनी लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. वरना होता तो वो टेम्पररी बन सकता था, फिर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता था. पॉसिबिलिटी है ना कि डेटिव बॉन्डिंग करनी है दो एल्यूमिनियम क्लोराइड्स के थ्रू, कैसे हो सकती है? ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आपकी वाली बात है कि चौथा क्लोरीन लगा दें, यस फॉर द टाइम बीइंग वो कर देता, उसको उसको स्टेबल हो सकता था. ठीक है महिरा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आनी थी? अगर आप फोर्थ एल्यूमिनियम भी लगाती, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर ही दूं. ये देखो बच्चे, यहाँ तो आप ये कर देती डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस. जो आप फोर्थ क्लोरीन लगाती तो एल्यूमिनियम के तो आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिर भी तो इस क्लोरीन नहीं देने थे ना, बनना तो फिर भी डेटिव बॉन्ड ही था. तो एट द एंड ऑफ द डे बनना तो डेटिव बॉन्ड है. इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो 3 से ज्यादा क्लोरीन्स के साथ एक टाइम पे बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज उसके पास हैं ही 3 इलेक्ट्रॉन्स. महिरा, इज इट मेकिंग सेंस टू यू कि वो 3 क्यों कर रहा है और फिर उसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही क्यों है?
काइंड ऑफ, बिकॉज देखो ना, सीधी सी बात है, अगर फोर्थ क्लोरीन आया है तो फिर उसको, एल्यूमिनियम को भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहिए था ना, लेकिन एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में तो पहले ही तीन है, उन तीन के तीन ने तो बॉन्ड बना लिया है, तो वो जो फोर्थ वन पड़ा है उसको तो फिर एंड पे डेटिव बॉन्ड ही बनाना है कि क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस एल्यूमिनियम को दे दे। ठीक है। अब ना इस Al2Cl6 के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा डाइमर एग्जिस्ट करता है, और वो ना अक्सर समटाइम्स इसको ऐसे पूछ लेता है। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ऑल्दो आपको वैसा ड्रॉ नहीं करना, लेकिन समटाइम्स एमसीक्यूज में आया होता है। उसने इस तरीके से इसको ड्रॉ करके लिखा होता है। ठीक है, एक आपके पास ये है, इसी तरीके से वो यहाँ पे दूसरा लिखेगा। एग्जैक्ट टाइमर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि जो हमने ये ऊपर ड्रॉ किया है ना, वो असल में ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे सबके तीन लोन पेयर्स, इसी तरह इसके, इसी तरह इसके, यहाँ पे डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। अब देखो इधर क्या कॉन्सेप्ट है, इस लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस एल्यूमिनियम को, इस लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर ऑफ Al2Cl6। ठीक है। तो ब्रांच वाला मतलब ये ऐसे होता है कि पूरा एक जो ब्रिज बना हुआ है ना, वो ब्रिज की शेप इन एक्चुअल इस तरह से होती है। अब वो आपको ना अक्सर समटाइम्स वो पेपर में कह देता है, मैं आपको ये बता देती हूँ, सॉलिड AlCl3 sublimes at 178 डिग्रीज, कि AlCl3 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट 178 डिग्रीज। और जब गैस में कन्वर्ट होता है वो कहता है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्पीशी इन द वेपर स्टेट एट दिस टेम्परेचर। तो आपने याद रखना है कि 178 पे जो AlCl3 सब्लाइम होता है ना, तो उसके बाद वो ये फॉर्म एग्जिस्ट कर लेता है AlCl2Cl6 की। तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो आंसर में कौन सा स्ट्रक्चर टिक करना है, Al2Cl6 के डाइमर वाला टिक करना है। तो ये वो फॉर्म है जो AlCl3 की सब्लिमेशन के बाद जो है वो आती है। मैम हम ये कह सकते हैं कि G7 डोनर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अलोन। G7 की समझ नहीं आई। ग्रुप 17 डोनर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अलोन। अच्छा, वो जो अकेला आप क्लोरीन कह रहे हो, हाँ, वो अकेला क्लोरीन कर सकता है अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता, जैसे कोई HCl होता तब वो कर सकता था। हाँ ये भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है बट यस। ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स करवाई है ना, दीज एग्जांपल्स आर गोइंग टू कम इनटू द पेपर। आप लोगों को ये सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फिर वो आपसे पेपर में अगर पूछे, मुझे जरा बच्चों लास्ट पॉइंट ये बताइएगा, Al2Cl6 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जरा काउंट करिएगा। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर? 6। वेरी गुड। सो देयर आर 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अगर मैं कहूँ डेटिव बॉन्ड्स कितने हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे? 2 डेटिव बॉन्ड्स, शाबाश। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो आपको पेपर में ऐसे ही पूछेगा, आपको ये आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जहन में थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हों कि आपने इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। समटाइम्स वो आपको पेपर में, जैसे एक बार उसने पास पेपर्स में ये कहा था कि एक क्वेश्चन एक और होमवर्क का ऐड कर देती हूँ एग्जैक्टली इसी की तरह। उसने लिखा था Al2I6, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन I6 लगाया था, और उसने कहा था कि बताओ इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। तो बताइएगा बच्चों इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे?
यस, इसमें भी टू होंगे। और फिर उसने क्वेश्चन लिखा था, एक्सप्लेन हाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो आपने इसके अंदर सिंपल वही बात लिखनी है कि iodine has a lone pair of electrons. It is electron rich, so it will donate its electron pair to aluminium. As simple as that. और अच्छा आंसर क्या होगा? बोथ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दें या लोन पेयर लिख दें, is donated to Al by iodine. So this is all from today. Is it clear to everybody? Yes, AlCl3 can exist as a solid. Yes, Ahmed, you can start doing the past papers by now. ठीक है जी बच्चों, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। एनी कंफ्यूजन इन टुडेज वर्क? कल मैंने आप लोगों से डिफरेंसेस पूछने हैं, आप लोगों ने अब कोविलेंट और कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्डिंग के दरमियान में डिफरेंसेस निकाल के लाने हैं। अभी तो आप लोगों का ए लेवल स्टार्ट हुआ है, तो क्राई तो आएगा। महिरा कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आसान चीजें पड़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, साथ साथ प्लीज एश्योर मी दैट एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट टुडेज वर्क। आप लोगों के होमवर्क में तीन चीजें ऐड हो गई हैं, एक AL2I6 की, फिर मैंने आपको दो एग्जांपल्स पीछे दी, और एक आप लोगों ने जो है साथ में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के डिफरेंसेस लाजमी लिख के लाने हैं। आई विल बी आस्किंग इन क्लास फ्रॉम यू ऑल। दिस इज इजी, यस, दिस इज एन इजी टॉपिक। So everybody is clear about today's work. Please let me know so we may end the meeting. It's all fine. Okay, okay, that's great. ठीक है. What about the rest? Okay, okay. ठीक है. अरीबा आपको, हुसैन, okay. ईशा, fine. ठीक है. हफ्सा, ठीक है, हफ्सा का हो गया सारा, okay. जैनब, ठीक है, okay, okay. So basically, ठीक है मैम, पर एक क्वेश्चन है, हुक्म बिल्कुल पूछें। मैम मैंने पढ़ा था कि AlCl3 जब गैस में होता है तो वो LCl3 होता है। तो हम जब ऊपर आपने क्वेश्चन दिया है कि वो गैसियस स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, वहां पर डायमंड नहीं होगा, LCl3 नहीं होगा उसकी जगह? वहां पे Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जो AlCl3 होता है ना, वो डाइमर बनाता है और Al2Cl6 के तौर पे एग्जिस्ट करता है। वो मोस्टली खुद AlCl3 की फॉर्म में इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। ओके मैम। ठीक है, उसने हमेशा कोशिश करनी है, इन केस ऑफ AlCl3 वो हमेशा Al2Cl6 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे। ठीक है, so this is all from today. I will inshallah be seeing you guys tomorrow, और फिर जो है हम इसको सारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।